Dear students, today it is your English literature class. We are going to read chapter number 1, Pippi Longstocking. It is written by Astrid Lindgren, a very famous writer of children books. Here he is describing an unusual girl named Pippi. She is very brave, funny and also incredibly strong. Let us start the chapter. When Pippi entered Villa Villicula for the first time, it was a lovely summer evening. The children next door, Tommy and Annika, were not at home. They had gone to visit their grandmother for a week, and so they had no idea that anybody had moved into the house next door. Dear children, here the writer is telling when Pippi entered the Villa Villicula for the first time. It is the name of a place where she is entering in that village. It was a lovely summer evening. She entered this villa on a very lovely summer evening. The children next door, the children who were living the next door, means जो children उसके just पास वाले घर में रहते थे, Tommy and Annika, were not at home. They were not at home when she entered Villa Villicula. They had gone to visit their grandmother for a week. वो अपनी grandmother के घर 1 week के लिए गए थे. So they had no idea that anybody had moved into the house next door. That is why they did not know कि उनके घर के पास वाले घर में कोई आकर रहने लगा है. On the first day after they came home again, they stood by the gate looking out onto the street. They had no idea that there actually was a playmate so near. When they come back from their grandmother's house, Tommy and Annika saw that someone was in the nearby house. उन्होंने देखा, they saw कि अब पास वाले घर में से कोई रहने वाला भी है, एक playmate भी वहाँ आ गया है, a person with whom they can play. They were standing there considering what they should do and wondering whether anything exciting was likely to happen or whether it was going to be one of those dull days. Here the writer wants to say that those Tommy and Annika were very much bored from their daily routine, so they were not expecting कि today they will get something very exciting. उनको लग रहा था कि आज का दिन भी रोज जैसे ही होने वाला है, डेली की जैसे, या फिर कुछ एक्साइटिंग होने वाला है. सो वो आसपास देख रहे थे. दे वर जस्ट लुकिंग फ्रॉम देयर हाउस. बाहर के रोड पर देख रहे थे कि कुछ इंटरेस्टिंग आज होने वाला है क्या. एंड जस्ट देन द गेट ऑफ विला विलिकुला ओपनड एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट. और वो दोनों क्या देख रहे थे कि पास वाले घर से डोर खुला विला विलिकुला का और उसमें से एक गर्ल बाहर निकली. She was the most remarkable girl Tommy and Annika had ever seen. और वो girl कैसी है? Remarkable. Remarkable means something that is to be noticed. कोई ऐसी चीज़ जिसको हम ज़रूर ध्यान से देखते हैं. And the girl was remarkable and Tommy and Annika had ever seen. आज तक उन्होंने ऐसे remarkable girl को कभी नहीं देखा था. She was Miss Pippi Longstocking, out of her morning walk, and she was out for her morning walk. वो घर से बाहर क्यों निकली है? Morning walk करने के लिए. This was the way she looked. अब आप एक next paragraph में देखेंगे कि वो कैसी दिखती थी. Here it has been described. Her hair, the color of a carrot, was braided into 2 tight braids that stuck straight out. उसके hair हैं वो किस color के हैं? Carrot color के. That means the color is orange. You might have had carrots in the winters. आप लोग गाजर खाते हैं ना? That is carrot. उसका color कैसा है? Orange. And the same color is the color of hair of Pippi. And it was braided into 2 tight braids. और वो उसके बाल 2 टाइट चोटी में बने हुए. Braided means चोटी बनाना. You might have, girls might know that. मम्मा अपने आपके बालों को 2 हिस्सों में बांध के कस के बांधते हैं ना. That is called braiding. Her nose was the shape of a very small potato. अब now look at her. उसका nose कैसा है? It is just resembling a very small potato and was dotted all over with freckles. और उसका nose जो है छोटे से potato से resemble कर रहा है और उस पर dark color के क्या पड़े हुए हैं? Freckles. Freckles आपने देखा होगा किसी किसी के face पे तिल होते हैं black वाले. वही उस टाइप के स्किन कलर को हम, जो स्किन का कलर डार्क होता है बाकी स्किन से, उसको हम फ्रेकल बोलते हैं.
तो यहाँ पर जो उसकी नोज़ है वो स्मॉल पोटैटो जैसी है और उस पोटैटो के ऊपर फ्रिकल्स पड़े हुए हैं, डार्क कलर के थोड़े से दाग पड़े हुए हैं. इट मस्ट बी एडमिटेड दैट द माउथ अंडर हिज नोज वॉज वेरी वाइड वन. और जो उसकी छोटी सी नोज के नीचे जो उसका माउथ है वो बहुत बड़ा है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो विद स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ. और उसके माउथ में वाइट कलर के टीथ हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं. दे आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. हर ड्रेस वॉज रैदर अनयूजुअल. और उसकी जो ड्रेस है वो भी काफ़ी अनयूजुअल है. नॉट वेरी कॉमन, क्वाइट अनयूजुअल, मतलब बिल्कुल अलग सी लग रही है. पिपी हैड मेड इट हरसेल्फ. और यू नो पिपी ने वो ड्रेस खुद बनाई है अपने लिए. शी हैड मेंट इट टू बी ब्लू. और उसने सोचा था कि उसे ब्लू कलर की बनानी है. बट देयर वाज़न्ट क्वाइट एनफ ब्लू क्लॉथ. लेकिन उसकी ड्रेस बनाने के लिए सफिशिएंट या एनफ या पूरा ब्लू क्लॉथ नहीं था. देन व्हाट शी हैड टू डू? Pippi has sewed little red pieces on it here and there. इसलिए पिपी ने अपनी ड्रेस में यहाँ वहाँ कुछ छोटे छोटे रेड कलर के पीसीस भी जोड़ लिए थे. On her long thin legs she wore a pair of long stockings. और उसके legs कैसे हैं? Thin and long. और she is wearing long stockings on her long thin legs. As you can see in the picture, stockings is the long socks that covers whole of your legs. एक लंबे लंबे socks होते हैं जो आपकी पूरी legs को cover करते हैं. तो she was wearing stockings. और उसमें भी एक सरप्राइज की वंडर की बात क्या है? You can see one brown and the other black. उसके stockings एक black है और एक brown है. She had on a pair of black shoes. And she had on means पहनना. She is wearing black shoes. और वो कैसे हैं? Exactly twice as long as her feet. उसके feet से exactly 2 times longer हैं. Her father had bought these shoes for her in South America. उसके father उसके लिए ये वाले shoes South America में purchase करके लाए थे. So that Pippi would have something to grow into. वो इतने बड़े शूज़ क्यों लाए हैं? So that Pippi can get the chance to grow. पर उसके फादर को लग रहा था कि पिपी के फीट और बड़े होंगे, इसलिए वो उसके लिए बड़े शूज़ लेकर आए थे. She loved them and she never wanted to wear any others. और पता है पिपी को वो शूज़ इतने पसंद थे कि वो कोई और शूज़ पहनना कभी भी पसंद नहीं करती थी. But the thing that made Tommy and Annika open their eyes widest of all was the monkey sitting on the strange girl's shoulder. But the thing that made Tommy and Annika open their eyes widest of all means Tommy and Annika were so much surprised that their eyes were wide open. उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं. And what did they see? They see a monkey sitting on the strange girl's shoulder. उस strange girl पिप के shoulder पे कौन बैठा है? एक monkey बैठा है. It was a little monkey dressed in blue pants and a yellow jacket and white straw hat. And what was the monkey dressed in? It was dressed in blue pants, yellow jacket and a white straw hat. You might have seen the straw. Straw is the type of grass, dried grass, जिससे कि hats बनाए जाते हैं. Pippi walked along the street with one foot on the sidewalk and the other in the gutter. Now Pippi is walking along the street. Pippi रोड पर चल रही है और उसका एक पैर कहाँ है? Sidewalk में है. Sidewalk means the place where the sidewalkers walk. आपने देखा होगा रोड के किनारे वॉक करने की जगह होती है. That is called sidewalk. And the other in the gutter. And now the other feet is just about to lie in the gutter. Tommy and Annika watched as long as they could see her. Tommy and Annika are watching from their house, inside their house wall, and they are watching Pip walking as much they can see. जहाँ तक वो देख सकते हैं वहाँ तक उसको देख रहे हैं. And now she was walking backward. थोड़ी देर के बाद वो आगे चलते चलते क्या करती है? She starts walking backward. अब वो पीछे की तरफ उल्टा चलने लगती है. It was because she did not want to turn around to get home. और वो उल्टा क्यों चल रही है स्टूडेंट्स? बिकॉज उसको पूरा आगे का राउंड कंप्लीट करके वापस अपने घर में नहीं जाना है. शी वॉन्ट्स टू वॉक सम मोर टाइम. इसलिए वो बैकवर्ड चलकर जा रही है, पीछे की तरफ. बैक मीन्स पीछे, वर्ड मीन्स तरफ. दैट वॉज बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम. When she reached Tommy's and Annika's gate, she stopped. जैसे ही वो टॉमी और अनिका के घर के गेट के पास पहुंचती है वो वहाँ पर रुक जाती है. The children looked at each other in silence. At last Tommy spoke. Why did you walk backward?
चिल्ड्रन एक दूसरे को देख रहे हैं कि अरे ये क्या कर रही है, शी इज़ वॉकिंग बैकवर्ड्स, हम सब तो आगे चलते हैं, ये पीछे चल रही है। और फिर वो आपस में वो उससे पूछते हैं, टॉमी ने पूछा कि तुम पीछे की तरफ क्यों चल रही हो? वाई डिड आई वॉक बैकवर्ड्स सेड पिपी। पिपी ने कहा अच्छा मैं पीछे क्यों चल रही हूँ? और वो कहने लगती है, इज़ दिस नॉट अ फ्री कंट्री, क्या ये एक फ्री कंट्री नहीं है? कांट अ पर्सन वॉक एनी वे शी वॉन्ट्स टू, क्या यहाँ पर रहने वाले लोग जैसे चाहे वैसे नहीं चल सकते हैं? लेट मी टेल यू दैट इन इजिप्ट एवरीबडी वॉक्स दैट वे। मैं आपको बताना चाहूँगी, पता है इजिप्ट में सब लोग ऐसे ही चलते जैसे मैं चल रही हूँ। एंड नोबडी थिंक्स इट्स द लीस्ट बिग स्ट्रेंज, और कोई भी इस बात को अनोखा नहीं मानता है, वहाँ पर सबके सब बैकवर्ड्स चलते हैं। नाउ पिपी इज टेलिंग Anika and Tommy that everyone walks backwards in Egypt. How do you know? asked Tommy. Tommy उससे पूछता आपको कैसे पता कि वहाँ के लोग ऐसे चलते हैं? You never been to Egypt, have you? आप तो कभी इजिप्ट नहीं गई हो क्या? कभी इजिप्ट गई हो आप? I have never been to Egypt. Indeed I have. अच्छा मैं इजिप्ट नहीं गई हूँ? नहीं मैं गई हूँ। पिपी जो है वो बोल रही है मैं तो वहाँ जा चुकी हूँ। दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ, यही एक चीज़ है जो आप मेरी इस बात को आप पक्का विश्वास कर लो, बी श्योर ऑफ। आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सीन मैनी थिंग्स स्ट्रेंजर दैन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड। और मैं दुनिया के बहुत सारे जगह जा चुकी हूँ, पूरी वर्ल्ड के मैं घूम चुकी हूँ, और मैंने बहुत सारी ऐसे स्ट्रेंज लोग देखे हैं जो कि पीछे की तरफ ही चलते हैं। आई वंडर वॉट यू वुड हैव सेड इफ आई हैड कम अलॉन्ग वॉकिंग ऑन माई हैंड्स द वे दे डू इन द फारदेस्ट इंडिया। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड कि अगर मैं इंडिया के लोगों की तरह चलूंगी हाथों के ऊपर तो आप मुझे देखकर क्या सोचोगे? नाउ यू मस्ट बी लाइंग सेड टॉमी। टॉमी ने कहा अच्छा हम समझ गए, आप बहुत झूठ बोल रहे हो। पिपी थॉट अ मोमेंट। पिपी एक मिनट सोचती है, एक सेकेंड के लिए, एंड देन से यू आर राइट शी सेड सैडली। बड़ा सैड होकर बोलती है कि हाँ आप सही कह रहे हो, मैं झूठ बोल रही हूँ, आई एम लाइंग। इट्स विकेड टू लाई सेड अनिका। अनिका ने बोला, अनिका अभी तक डरी हुई थी, बट नाउ शी हैज़ गैदर्ड अप एनफ करेज टू स्पीक। अब उसने अपनी बहुत सारी हिम्मत जुटाई है। करेज मीन्स हिम्मत, कि अब वो पिप्पी से कुछ बोल सकती है। एंड नाउ शी इज सेइंग इट्स विकेड टू लाई। अनिका ने कहा नहीं झूठ बोलना तो कितनी गंदी बात है। येट्स इट्स वेरी विकेड टू लाई सेड पिप्पी इवन मोर सैडली। पिप्पी अब और भी सैड होकर बोलती है, हाँ झूठ बोलना सच में बहुत बुरी बात है, बट आई फॉरगेट इट नाउ एंड देन। लेकिन मैं कभी कभार इस बात को भूल जाती हूँ। एंड हाउ यू कैन एक्सपेक्ट अ चाइल्ड लाइक मी टू बी ऑलवेज टेल द ट्रूथ। और मेरे जैसे बच्चे को आप कैसे सोच सकते हो कि मैं हमेशा सच बोलूँगा? व्हेन माई मदर इज़ एन एंजल, मेरी माँ एक एंजल है, एंड माई फादर इज़ अ किंग ऑफ कैनिबल आइलैंड, और मेरे फादर जो हैं कैनिबल आइलैंड के राजा हैं। कैनिबल मीन्स अ प्लेस वेयर पीपल यूज टू किल अदर पीपल, जहाँ पर लोग दूसरे लोगों को मार डालते हैं। उस जगह के फादर, उसके फादर उस जगह के किंग है, और उसकी मदर कौन है? एंजल। एंजल मीन्स जैसे हम लोगों में परी होती है उस टाइप से। एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशन, और पता है मैं ओशन में सारे बड़े बड़े सीज़ में मैं सेल कर चुकी हूँ। मीन्स आई हैव बीन सेलिंग देयर इन द शिप्स, और मैं दूर दूर ओशंस में जाकर आ चुकी हूँ पूरी ज़िंदगी। देन फिलिप स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड। अब पिप्पी जो है स्माइल करके बोलती है, एंड लेट मी टेल यू दैट इन द कॉन्गो देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ। और मैं तुमको बताना चाहूँगी कि कॉन्गो में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो सच बोलता हो। दे लाई ऑल डे लॉन्ग, वो सारे दिन झूठ बोलते हैं। बिगिन एट 7 in the morning and keep on until sundown। सुबह 7 बजे मॉर्निंग में शुरू करते हैं झूठ बोलना, और सनसेट, सनडाउन मीन्स सन डूबने तक झूठ ही बोलते रहते हैं। सो इफ़ आई शुड हैपन टू लाई नाउ एंड देन, अगर मैं कभी कभी झूठ बोल दूँ, यू मस्ट ट्राई टू एक्सक्यूज़ मी, इसलिए आप मुझे एक्सक्यूज़ करने के लिए कोशिश किया करो, मुझे माफ़ कर दिया करो। And to remember that it is only because I stayed in Congo a little too long। और ये याद रखा करो कि मैं कॉन्गो में थोड़ा ज़्यादा दिनों के लिए रही थी, जहाँ पर लोग हर समय झूठ बोलते हैं। We can be friends anyway, can't we? चलो कोई बात नहीं, हम लोग कम से कम फ्रेंड तो बन सकते हैं ना? क्या हम बन सकते हैं?
Oh, sure, said Tommy, and realized suddenly that this was not going to be one of those dull days. हाँ, टॉमी बड़ा एक्साइटेड होके बोलता है, हाँ हाँ वेरी श्योर, क्यों नहीं बन सकते हैं. एंड रियलाइज सडनली, और अचानक उसको याद आया कि वाह, आज तो हमारा दिन रोज के डल डेज जैसा नहीं होने वाला, हम आज बोर नहीं होंगे. बाय द वे, वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी? आस्क्ड पिपी. पिपी पूछती है, क्या आप मेरे साथ आकर के ब्रेकफास्ट करेंगे? मेरे साथ आके आप अंदर ब्रेकफास्ट करेंगे मेरे घर में? वाई नॉट, सेड टॉमी. कम ऑन, लेट्स गो. टॉमी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो हम चलते हैं. ओ यस लेट्स, सेड अनिका. अनिका ने कहा, हाँ हाँ चलो हम चलते हैं. बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस टू यू टू मिस्टर निल्सन. लेकिन मैं पहले आपको मिस्टर निल्सन से मिलवाना चाहूँगी, पिपी ने कहा, सेड पिपी. एंड द लिटिल मंकी टुक ऑफ द कैप एंड बोर्ड पोलाइटली. और जो लिटिल मंकी उसके शोल्डर पे बैठा था, उसी का नेम क्या है? मिस्टर निल्सन. और उसने अपनी कैप को हटाया और उन लोगों के सामने पोलाइटली बो करने लगा. बो मीन्स टू, किसी के सामने बो डाउन होना, मतलब किसी को रेस्पेक्ट देते हुए उसके सामने झुकना. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी रिटन बाय एस्ट्रिड लिंडग्रेन एंड इट इज अ only first part of Pippi Longstocking. If you are interested, you can go and read the whole story online. Thank you, students.